there is new lecture, investigation of an epidemic. Now, what is epidemic and what is endemic? Endemic means there is a constant presence of a disease or infectious agent at a usual level without importation from outside within a given area or population. That means वो disease वहाँ पे prevalent है, उस area में prevalent है, constantly prevalent है. Now, epidemic, unusual occurrence of the disease clearly in excess of its normal expectation in a geographical location at a given point of time. That means कि हमारी expectation से भी बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं उस डिज़ीज़ के, तो वो एपिडेमिक है. अब एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है? एक्सपेक्टेशन दैट मीन्स कि हम प्रीवियस हिस्ट्री लें 3 to 4 ईयर्स की और 4 to 5 ईयर्स की प्रीवियस हिस्ट्री के बेसिस पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस पर्टिकुलर डिज़ीज़ के इतने केसेस आएंगे, पर उस पर्टिकुलर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे उस जियोग्राफिकल एरिया में हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं. ठीक है, 3 to 4 टाइम्स केसेस आ रहे हैं, तो ये एक एपिडेमिक हो गई. Now, as per definitions, occurrence of cases of an illness in a community clearly in excess of expected numbers. Occurrence of 2 or more epidemiologically linked cases of a disease of outbreak potential. जैसे कि मीज़ल्स या प्लेग है ना, कोई भी आउटब्रेक पोटेंशियल डिजीज़ है जिसके केसेस नहीं थे लेकिन एपिडेमियोलॉजिकली लिंक्ड, मतलब एक केस से दूसरे में ट्रांसमिट हुई है डिजीज़. इस तरह के 2 या 2 से ज़्यादा केसेस मिल जाए तो भी हम कहते हैं एपिडेमिक हो गई. अ सिंगल केस ऑफ न्यू इमर्जिंग डिजीज़ और इरेडिकेटेड डिजीज़, जैसे इंडिया से पोलियोमाइलाइटिस इरेडिकेट हो गई है, लेकिन अगर उसका सिंगल एक केस भी डिटेक्ट हो जाता है तो दैट इज़ एपिडेमिक. एन आर्बिट्रेरी लिमिट ऑफ 2 स्टैंडर्ड एरर from the endemic frequency is used to define the epidemic threshold for common diseases. मतलब किसी एरिया में अगर कोई डिजीज़ एंडेमिक है, ठीक है, एंडेमिक है तो उसके पर्टिकुलर एक केसेस आते ही रहेंगे, लेकिन अगर उसके मोर देन 2 स्टैंडर्ड एरर से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं तो फिर वो एपिडेमिक हो गई. Some more definition regarding these type of definitions. There is sporadic, pandemic. Sporadic means scattered about cases occur irregularly, haphazardly and infrequently from time to time, such as tetanus, herpes zoster. Herpes zoster क्या होता है? Reactivation of primary latent chicken pox, है ना. Pandemic and epidemic usually affecting a large proportion of population, large geographical area, occurring over a wide geographical area. It may be spread over the across the borders, जैसे अभी COVID-19 चल रहा है. Now there is 2 type of definition, primary case and index case. Primary case is the first case of communicable disease introduced into the population unit being studied. जो हम डिजीज़ को स्टडी कर रहे हैं उसका पहला केस जो उस कम्युनिटी में था. और इंडेक्स क्या है? जो केस अटेंशन में आया था सबसे पहले. तो फर्स्ट केस टू कम टू द अटेंशन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर. इंडेक्स केस प्राइमरी नहीं हो सकता हमेशा, लेकिन प्राइमरी केस इंडेक्स भी हो सकता है. नाउ व्हाट इज आउटब्रेक और व्हाट इज एपिडेमिक? बेसिकली इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ scale. Outbreak are usually limited to a small area. Outbreak are usually within one district or few blocks, but epidemic covers a large geographical area and has more than one focal point. Epidemics usually linked to control measures on a district or state-wise basis. The take-home message is there is no formal difference. That means epidemic और outbreak एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं. देन इसमें क्या है? यू आर वन हु डिसाइड हाउ मच इम्पोर्टेंस यू वांट टू गिव द इवेंट. इफ़ यू आर हैविंग लॉट्स ऑफ मीजल्स एंड नन वांट्स टू हेल्प, कॉल इट अ मीजल एपिडेमिक. इफ़ इट इज़ अ क्लस्टर वेल अंडर कंट्रोल्ड दैट प्रेस इज ब्लोइंग आउट ऑफ प्रपोर्शन, कॉल इट अ स्मॉल आउटब्रेक. दैट मीन्स कि जो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, दैट इज़ एपिडेमिक. नाउ टाइप्स ऑफ एपिडेमिक. कॉमन सोर्स एपिडेमिक, प्रोपेगेटेड एपिडेमिक एंड स्लो और मॉडर्न एपिडेमिक.
Common source may be further divided into single exposure, multiple exposure, propagated further divided into person to person transmission, orthopod vector borne diseases, and animal reservoir due to animal reservoir. The single exposure, it is also known as point source. Multiple exposure, continuous or intermittent. It may be continuous or intermittent. Now, in point source or outbreak, persons are exposed over a brief time to the same source, such as a single meal or an event. The number of cases rises rapidly to a peak and falls gradually. The majority of the cases occurs within one incubation period of the डिजीज़. किसी सिंगल इवेंट में एक्सपोजर हुआ तो जो भी उसके इंक्यूबेशन पीरियड है उस डिजीज़ की, उसी में मैक्सिमम केसेस आ जाते हैं. कॉमन सोर्स आउटब्रेक is one in which people are exposed intermittently or continuously to a common harmful sources. The period of exposure may be brief or long. An intermittent exposure often results in an epidemic curve with irregular peaks that reflects the timing and extent of the exposure. Continuous exposure will often cause cases to rise gradually and possibly plateau is there rather than a peak. This is a democratic representation of epidemic curve of common intermittent source. Now, propagated outbreak. Propagated outbreak is one that is spread from person to person. Because of this, propagated epidemic may last longer than common source epidemic and may lead to multiple waves of infection if secondary and tertiary cases occurs. Point source में क्या था, सिर्फ एक ही पीक आ रही थी. The classical propagated epidemic curve has a series of progressively taller peaks. लेकिन पीक क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बढ़ते चले जाएंगे तो पीक भी बढ़ती चली जाती है एक बार. Now, what are different need for investigation of an epidemic or a new disease? The primary purpose is to control the outbreak or epidemic, limit its spread to another area. It assess the preventive strategies and to know the trends of some endemic disease which are having potential of outbreak or epidemic. And it is very important to know who get the disease, how many get them, where do they get them, when do they get them, and why do they get them. So 5 questions are very important: who, how, where, when, and why. Now, what are objectives of an epidemic investigation? The objectives are to define the magnitude of epidemic or outbreak or involvement in terms of time, place, and person, to determine the particular condition and factors responsible for the occurrence of epidemic, to identify the cause, source of infection or sources of infection and modes of transmission, to determine measure to necessary to control the epidemic, and to make recommendation to prevent reoccurrence. Now, what are recommended preparatory action? कैसे हम तैयारी करते हैं किसी भी इन्वेस्टिगेशन की? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई अ नोडल अफसर एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाएगी तो कोई भी काम नहीं करेगा. NICD इज़ द नोडल ऑफिस एट द नेशनल लेवल. नेशनल NICD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज. PSC, CHC मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज विल बी द नोडल ऑफिसर लोकल लेवल पे. ठीक है. फॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ रैपिड रिस्पॉन्स टीम, दैट इज़ RRT. तो रैपिड रिस्पॉन्स टीम की क्या कंपोजिशन होती है? देयर शुड बी एन एपिडेमियोलॉजिस्ट, क्लिनिशियन, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट एंड प्रोग्राम ऑफिसर. Now, name, address, telephone number of RRT members should be available with district and state surveillance officer at all the time, so that they can be activate as soon as possible. जैसे ही हमें पता चलता है कोई एपिडेमिक हो सकती है तो हमारी RRT टीम को एक्टिवेट कर दिया जाता है. ठीक है. ट्रेन मेडिकल एंड अदर हेल्थ पर्सनल, रेगुलर रिव्यू ऑफ डेटा,
alertness during known outbreak season, and identifying outbreak prone areas. Ensure necessary drugs and material, identifying and strengthening the appropriate labs at regional, state, and district level, designating vehicle or means of transport, ensuring that communication channels are in working condition, IEC, that is information, education, and communication activities for community participation, and interdepartmental committee should be constituted. Now, what are different diseases that requiring investigation? Endemic disease with a potential of causing focal or large outbreak such as malaria, cholera, measles, viral hepatitis, meningococcal meningitis, etc. Diseases under eradication or elimination phases. Even a single case of such diseases may be treated as an outbreak or epidemic. Rare but internationally important disease with high case fatality rate, and with the potential of importation due to the existence of conductive epidemiological conditions such as yellow fever, avian influenza. येलो फीवर इंडिया में नहीं है लेकिन सारी फेवरेबल कंडीशन है. आउटब्रेक ऑफ अननोन डिजीज और syndrome. Now there are active case based surveillance may be initiated by medical officer in charge in response to a suspected outbreak in following situation. जैसे अ कम्युनिटी मेंबर रिपोर्ट अनएक्सपेक्टेड अकरेंस ऑफ केसेस. ठीक है, कोई र्यूमर आ गई, कोई केस के बारे में पता चल गया, तो वहाँ का जो इंचार्ज है मेडिकल ऑफिसर वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा. तो MPHW मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर डिटेक्ट्स अनएक्सपेक्टेड अकरेंस ऑफ केस ड्यूरिंग हिज और हर रूटीन होम विजिट्स. उसमें अगर उनको कुछ लगता है कि अनएक्सपेक्टेड एक ही टाइप के कुछ केसेस आ रहे हैं. मोबाइल टीम आइडेंटिफाई केसेस ड्यूरिंग द विलेज विजिट. मीडिया रिपोर्ट्स क्लस्टरिंग ऑफ द केसेस इन अ कम्युनिटी और एरिया, जैसे न्यूज़पेपर्स में आता है. तो इन सब कंडीशन में जो भी इंचार्ज है मेडिकल ऑफिसर वो एक्टिव केस बेस्ड सर्विलेंस करेगा, मतलब विजिट करेगा उस जगह. नाउ देयर आर डिफरेंट स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन. व्हाट आर दे? फर्स्ट, वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस. ठीक है, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज जो एक्टिव सर्विलेंस कर रहा है वो चेक करेगा कि इफ़ एबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर ऑफ केसेस, कि कुछ केसेस होते ही हैं जैसे एंडेमिक हैं तो कोई, लेकिन एबनॉर्मल इंक्रीज है या हमने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं. अ क्लस्टरिंग ऑफ केसेस, किसी पर्टिकुलर जगह पे है बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं. केसेस आर एपिडेमियोलॉजिकली लिंक्ड, एक दूसरे से लिंक्ड है केसेस. मैनी डेथ्स हैव अकर्ड. तो स्टैंडर्ड केस डेफिनेशन शुड बी यूज्ड. इस कंडीशन में हमें सबसे पहले केस को डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि हम किसको केस कहेंगे, किस तरह से ग्रेडिंग करेंगे, कब से सस्पेक्ट करेंगे, कब उसे कंफर्म करेंगे, तभी एक डायग्नोसिस बन सकती है. नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस: केस डेफिनेशन, सिंड्रोमिक, प्रिजम्पटिव एंड कंफर्म. सिंड्रोमिक डेफिनेशन, डायग्नोसिस मेड बाय पैरामेडिकल पर्सन और मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम और क्लिनिकल पैटर्न. ठीक है, जैसे कुछ केसेस, अब जैसे कोविड-19 था तो कोविड-19 में सारे केसेस कोविड पॉजिटिव नहीं होते थे लेकिन साइन सिम्टम लगभग वैसे होते थे, तो उसमें वो सस्पेक्ट कर लेते हैं. या टीबी है जैसे, ट्यूबरक्लोसिस में सस्पेक्ट कर लिया लेकिन सारे सस्पेक्ट केस कंफर्म नहीं होते. ठीक है. प्रिजम्पटिव, डायग्नोसिस मेड ऑन टिपिकल हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन बाय मेडिकल ऑफिसर, सच एज इन कोविड-19 कि कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं, उसी के बेसिस पे हम सोच सकते हैं कि हाँ भाई ये कोविड हो सकता है, लेकिन कंफर्म हम RT-PCR के बाद ही करेंगे. तो कंफर्म केसेस, क्लिनिकल डायग्नोसिस कंफर्म बाय एन एप्रोप्रिएट लैब टेस्ट. नाउ कंफर्मेशन ऑफ एन एग्जिस्टेंस ऑफ एन एपिडेमिक. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या था? वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस. पहले डायग्नोसिस पक्की करो, उसके बाद हम देखते हैं एपिडेमिक है या नहीं है. पता चला हमने, ठीक है केसेस आ रहे हैं लेकिन हमने एक्सपेक्ट किया था इतने केस आ रहे हैं, तो वो एपिडेमिक नहीं है. तो एपिडेमिक कब करेंगे हम कंफर्म? कंपेयरिंग द डिजीज़ फ्रिक्वेंसी ड्यूरिंग द सेम पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर्स. तो पिछले कुछ सालों से हम कंपेयर करेंगे कि कितने केसेस पहले आते थे, कितने अब आए हैं. जैसे डेंगू के केसेस हर साल आते हैं एक पर्टिकुलर सीज़न में, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं इतने केस आएंगे, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा केसेस आ जाए तो एपिडेमिक हो सकती है. मोर देन 2 स्टैंडर्ड एरर फ्रॉम द अकरेंस ऑफ एंडेमिक डिजीज़. नाउ थर्ड स्टेप इज़ डिफाइनिंग द पॉपुलेशन एट रिस्क. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? डिटेल्ड एंड करेंट मैप ऑफ एरिया कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट रोड्स,
natural landmarks and location of all dwelling units. Then establish the size of population which can be carried out by house to house visit. Now rapid search of all cases, that is done by active surveillance, includes visits or telephone calls to the medical facilities or private practitioners or through peripheral health personnel. तो इसमें सबको इन्वॉल्व कर लेंगे हम. It should be maintained until the outbreak is over. Now data analysis. अब clinical data, frequency of sign and symptom, कोर्स ऑफ डिजीज़, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, सिक्वली और डेथ रेट्स, इन सब का हम डेटा तैयार करते हैं. ठीक है, उसकी फिर एनालिसिस की जाती है. एपिडेमियोलॉजिकल डेटा, द कलेक्टेड डेटा शुड बी एनालाइज्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन. हमने इसी टर्म्स में इसको डिस्क्राइब करना है डिजीज़ को. नाउ तो डिस्ट्रीब्यूशन बाय टाइम. तो ऑनसेट ऑफ इलनेस शुड बी ग्राफ्ड बाय आवर्स, डेज और मंथ एज अप्रोप्रिएट, नोन एज एपिडेमिक कर्व. तो एपिडेमिक कर्व क्या होता है? एपिडेमिक कर्व ये सजेस्ट करता है दैट इज व्हाट इज़ द टाइम रिलेशनशिप विद द एक्सपोजर टू द सस्पेक्ट सोर्स. ठीक है, टाइप ऑफ एपिडेमिक एंड ट्रेंड ऑफ एपिडेमिक. टाइप हम डिफाइन कर चुके. ट्रेंड, एपिडेमिक की ट्रेंड में क्या क्या होता है? सीजनल, साइक्लिक एंड सेक्युलर. सीजनल पर्टिकुलर ईयर में, पर्टिकुलर सीजन में, पर्टिकुलर ईयर, सॉरी ईयर, किसी ईयर में हम करते हैं, पर्टिकुलर सीजन में ये केसेस हैं. साइक्लिक मीन्स कुछ सालों के बाद वापस एपिडेमिक हो रही है. ठीक है, और सेक्युलर में लॉन्ग टर्म क्रॉनिक डिजीजेज से रिलेटेड होती है. तो इसी से हम इस एपिडेमिक कब से निकालते हैं, कितना इंक्यूबेशन पीरियड है, कब कितने टाइम में केसेस बढ़ रहे हैं. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बाय प्लेस. तो जो हमने मैप शुरू में बनाया था जियोग्राफिकल एरिया का नेचुरल लैंडमार्क के साथ, उसमें हम स्पॉट मैप्स बनाते हैं. स्पॉट मैप्स ऑफ केसेस एंड देयर रिलेशन टू पॉसिबल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. पता चला हमने किसी एरिया का मैप बनाया, उसमें पर्टिकुलर एक ही जगह बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, तो सोर्स वहीं पर है. ठीक है, क्लस्टरिंग ऑफ केसेस, कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन वहीं है. आइडेंटिफाई हाई रिस्क पॉकेट्स. तो उससे क्या पता चलेगा? पैटर्न ऑफ डिजीज़ या स्प्रेड ऑफ टाइम, कैसे फैल रही है डिजीज़, कहाँ पहले हुई थी, उसके बाद किस एरिया में पहुँची, कैसे पहुँची. नो डिस्ट्रीब्यूशन बाय पर्सन. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन, it may be defined as term of age, sex and occupation. Age, sex, occupation, socio-economic parameters, migration, vaccination history and other relevant characteristics. Group of cases may be in different categories such as for infant, that is 0 to 11 months, 1 to 4 years, 5 to 14 years, 15 to 44 years and more than 45 years, or maybe there are different groups may be there. Determine attack rate or case fatality rate. It may be done by data analysis. Now after these description, there is formulation of hypothesis. ठीक है, हमने टाइम, प्लेस, पर्सन के बेसिस पे हमने देख लिया कैसे डिजीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन है, केसेस की डिस्ट्रीब्यूशन है. देन हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव थ्योरी डिजाइन टू एक्सप्लेन द एपिडेमिक इन टर्म्स ऑफ पॉसिबल सोर्स, कॉजेटिव एजेंट, पॉसिबल मोड ऑफ स्प्रेड, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड पीपल एट रिस्क. जैसे अभी आप सभी ने कोविड-19 के टाइम पे देखा. ठीक है, डिफरेंट थ्योरीज आ रही थी. नाउ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स मेजर्स. ठीक है, सूटेबल कंट्रोल मेजर्स इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेड बाय लोकल पीएससी स्टाफ. हमने जो हाइपोथेसिस बनाई है उसके बेसिस पे हम स्पेसिफिक कंट्रोल मेजर्स लगाते हैं. इफ़ नीडेड डिस्ट्रिक्ट स्टेट प्रोवाइड नेसेसरी हेल्प. मॉनिटरिंग द सिचुएशन. मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज या डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर शुड मॉनिटर द सिचुएशन ऑन डेली बेसिस एंड गिव फीडबैक टू रैपिड रिस्पॉन्स टीम. इफ़ एपिडेमिक कंटिन्यूज देन हाइपोथेसिस शुड बी रिव्यूड. अगर हमने जो हाइपोथेसिस बनाई थी उसके हिसाब से हम कंट्रोल मेजर चला रहे हैं और हमारी एपिडेमिक बढ़ती चली जा रही है, कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हम फिर से उसको रिव्यू करेंगे जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है. नाउ मेन पॉइंट्स टू मॉनिटर. क्या क्या हमने मॉनिटर करना है? ट्रेंड इन द केसेस एंड डेथ्स, कंटेनमेंट मेजर दैट आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, ड्रग्स, वैक्सीन स्टॉक्स, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड मीडिया रिस्पॉन्स. नाउ इवेल्युएशन ऑफ इकोलॉजिकल factors. Prime concern is to relate the disease to environmental factor to know the source of infection, reservoirs and mode of transmission. Investigation should be done for
sanitary status of eating establishment, water and milk supply, breakdown in water supply system, movement of the human population, and atmospheric changes. नाउ डिक्लेयरिंग ऑफ द आउटब्रेक टू बी ओवर, कब हम कहेंगे कि भाई एपिडेमिक या आउटब्रेक ख़त्म हो गया है? तो डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर इसको डिक्लेयर करेगा। कब डिक्लेयर करेगा? व्हेन देयर आर नो न्यू केसेस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 इंक्यूबेशन पीरियड सिंस द ऑनसेट ऑफ लास्ट केस, है ना। तो जैसे कि कोविड-19 में जब कंटेनमेंट जोन बनाते थे तो कंटेनमेंट कब ख़त्म करते थे? 14 डेज़ का इंक्यूबेशन पीरियड मानते हैं, तो 28 डेज़ पे कंटेनमेंट शुरू में इनिशियली जो गाइडलाइंस आई थी 28 डेज़ में कंटेनमेंट ख़त्म करते थे, है ना। तो राइटिंग द एंड रिव्यू द फाइनल रिपोर्ट्स, तो डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर रिसीव ये सब जो रिव्यू रिपोर्ट है सब वो डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज से 10 दिन के अंदर जब हमने आउटब्रेक ओवर किया उसमें उसको मिलेगी वो। देन सर्विलेंस कमेटी शुड रिव्यू द रिपोर्ट एंड मेक रिकमेंडेशंस। नाउ अब जब आउटब्रेक चल रहा था उस समय जब हमने शुरुआत में कंट्रोल मेजर्स किए थे तो देयर इज़ स्पेसिफिक मेजर, अगर हमें पता है कि क्या सोर्स है तो स्पेसिफिक मेजर करेंगे, अदरवाइज जनरल मेजर करेंगे। तो स्पेसिफिक मेजर डिपेंडिंग अपॉन द पॉजिटिव एजेंट, ब्रॉड स्टेप्स आर आइडेंटिफिकेशन एंड नलिफिकेशन ऑफ द सोर्स, मिनिमाइजिंग ट्रांसमिशन टू प्रिवेंट फर्दर एक्सपोजर, ठीक है, जैसे आइसोलेशन कर देते थे, क्वारंटीन करते थे, प्रोटेक्शन ऑफ द होस्ट एंड इफेक्टिव केस मैनेजमेंट। अब जनरल मेजर हमें अभी तक पता नहीं चला भाई सोर्स क्या है, तो जनरल मेजर क्या यूज़ करेंगे? शुड स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर रिपोर्टिंग एन आउटब्रेक, एडिशनल मेडिकल ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन एंड नर्सिंग स्टाफ में बी सेंट फ्रॉम द लोकल ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टू नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी, असिस्टेंस फ्रॉम लोकल प्रैक्टिशनर और स्पेशलिस्ट, कैंप्स हॉस्पिटल शुड बी इस्टेब्लिश्ड इन स्कूल बिल्डिंग और सिमिलर स्ट्रक्चर। तो हमें रिसोर्सेज बढ़ाने हैं अपने। Uninterrupted flow of medicine should be there. District authorities should ensure equipment and supply takes place. 24-hour communication channels to be established between district and team leader. IEC to sensitize the community about the problem, giving them correct message. Appoint a special officer whose main responsibility to update the press on daily basis, जिससे पैनिक ना हो, सही इन्फॉर्मेशन जाए। तो क्या होता है, अनयूजुअल हेल्थ इवेंट अगर कोई हुआ तो हम देखेंगे भाई ये दिस इज़ दिस एन आउटब्रेक, यस और नो, इफ़ नो देन नो प्रॉब्लम, इफ़ यस देन इटियोलॉजी, सोर्स एंड ट्रांसमिशन उसका नोन है या नहीं, इफ़ नोन देन स्पेसिफिक कंट्रोल मेजर शुड बी देयर। अगर हमें सोर्स का नहीं पता तब क्या करेंगे? देन RRT शुड बी अलर्टेड, फर्दर इन्वेस्टिगेशन जनरल कंट्रोल मेजर कर लेंगे, ठीक है, जब तक हमें स्पेसिफिक कॉज नहीं पता फिर RRT को अलर्ट कर देंगे। RRT फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, लैब इन्वेस्टिगेशन, एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, डिस्क्राइब द आउटब्रेक इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन एंड डेवलप हाइपोथेसिस रिगार्डिंग सोर्स, ट्रांसमिशन, एटियोलॉजी एंड पीपल एट रिस्क, ठीक है। उसके बाद हम रिव्यू करेंगे क्या हाइपोथेसिस हमारी फिट हो रही है, अगर फिट हो रही है if yes then institute specific control measure, if no then further study, case control study or other specific study should be there. So this is all about the investigation of epidemic. Thank you.